Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and welcome to the 13th episode of Weekly Takes by Jagjit from New York. Your love and support to Weekly Takes knows no bounds. The last episode crossed 5,000 views in a span of just 3 months. I thank you all from the bottom of my heart. Let me also take this opportunity to thank my son, who edits all my episodes, for you to have a better look. In this episode, we start by talking about news of USA with a special focus on elections 2020, a little known fact about New York City, news of India, wherein we will talk about the important current events, history of Bihar and the role of the opposition, and finally we will talk about the future of the Congress party. Let's begin. News of USA. It's now only 65 days to the 2020 elections. Both the parties are done with their conventions. The candidates have officially accepted the nominations, and yes, the battle is on. Both are trying to woo the voters with promises. I remember here a phrase, comprehensive immigration reform, which is perhaps the most tossed out phrase in every election, but nothing happens. TV is full of who said what, and depending on the channel which you are watching, you hear democracy is in danger, or so and so is not the savior of America, only I am. Our emails are flooded with appeals and with donation buttons, and so is the social media. In the media, got to read that Joe Biden was accused of plagiarizing another politician's speech. Trump was labeled as spreading lies and fears. Amidst all this hullabaloo, I have a question. Do these political leaders have time for us? While the nation's economy is struggling, people in record numbers are out of jobs and struggling to bring food on their table, let us try to examine how much these political parties as well as the candidates who profess that they are working for us spend on their elections. Let's take a look at 2016 election spending. A staggering $6.5 billion for the presidential and congressional elections combined, according to campaign finance watchdog OpenSecrets.org. The presidential contest, primaries and all, accounts for $2.4 billion. The tally includes spending by campaigns, party committees and outside sources. 6.5 billion is a huge sum. With that much money, you could fund the Corporation for Public Broadcasting for 15 years. Give every public school teacher a $2,000 raise. Instead, Americans used that money to fuel a 596-day political contest that most of us were disgusted by well before it was over. We normally believe that Republicans are a party of the rich and Democrats are looking towards the poor. But Hillary Clinton's unsuccessful campaign, $768 million in spending, outspent Trump's successful one, $398 million, nearly 2-to-1 ratio. The Democratic National Committee and left-leaning outside groups also outspent their Republican counterparts by considerable margins. Barack Obama spent $730 million in his election campaign, while John McCain spent only $333 million. As a nation, we must think about it. Should there not be a limit to election spending as we do have in Great Britain or in neighboring Canada? Or should we have a shorter campaign time which would lessen expenses? Share your thoughts. Write comments so that we may deliberate upon it in the next episode. And yes, one more news item which was taking rounds in the social media, postal and absentee ballots and fraud associated with it. It is known to any political worker that these are not kosher. During the primaries, the postal ballots are even marked R and D based on whichever party you are registered voter of. We need to figure out a new method to put an end to this practice. Maybe increase the voting time and allow all those who come to the booths to vote, but no postal ballots.
If campaign time can be over 500 days, why not the voting time be for 2 days? Share your thoughts, America. Now let me share some good news to you after the executive order signed by the president. People in over 30 states will be getting unemployment benefits of $300 per week. New York has ultimately agreed and applied to FEMA. Some states are adding up $100 from their coffers to make it a $400 deal. And on a totally different note, a question to you all. How old is old? Based on a new research, according to average health quality and life expectancy, people in the age group of 18 to 65 years are considered young. Does it make you happy? If it does, like your show, The Weekly Takes. Now, moving over to some interesting facts about New York City. The Empire State Building gets hit by lightning around 23 times a year. You may have heard of the Highline Park located above the New York City streets, but have you heard of the Low Line? It is the world's first underground park in the world and is located on Manhattan's west side. Grand Central Terminal has a whispering gallery. Stand at opposite diagonal corners of the room to whisper to someone standing on the other side of the room. Try it out next time you are there. One of the oddest facts about New York City is that cowboys used to patrol the west side of Manhattan. Why so? Well, their job was to wrangle people out of the way of freight trains in an effort to avoid accidents. Luckily, as safety measures improved, they were no longer needed and phased out by 1941. If Brooklyn was its own city instead of a borough of New York City, it would be the 4th largest city in the United States. How many of these did you know? Be truthful and let me know. And if you have some more interesting facts up your sleeve, do post it below. We will share it. अब चलें भारत की ओर। पहले एक अपडेट। पिछले एपिसोड्स में मैंने चर्चा किया था सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का, और हाँ, आप सबों के सामूहिक आवाज से एक प्रेशर बना, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा जांच शुरू हुई। सीबीआई को मुंबई पहुंचे 9 दिन हो चुके हैं। पड़ताल में एक नया ड्रग एंगल सामने आया है। सोचने की बात है कि ड्रग की कहानी और इस्तेमाल पर संजय दत्त की पूरी फिल्म बनी। सबने देखा, सबने जाना, पर फिर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बहुत पहले ही इसमें दाऊद और कराची एंगल की चर्चा की थी, D&K। बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम ड्रग डीलर और पेडलर हो सकते हैं। अगर इस प्रकरण में बॉलीवुड का गंध साफ हो जाए तो सीबीआई का धन्यवाद। अब आम जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि सुशांत को शायद न्याय मिल सकेगा। अब हमें इंतजार करना चाहिए जांच और उसके रिपोर्ट का। इस संबंध में एक लतखोर पत्रकार के भी अजीबोगरीब हरकतों, अक्यूज्ड को मंच देना से जनता परेशान है। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस जनता के सामने नंगी हो चुकी है। पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है। इतिहास साक्षी है, धृतराष्ट्र कभी जीत नहीं पाए। अब बात बिहार के इतिहास की। जैसा कि पहले के एपिसोड में बताया गया था कि उन दिनों छात्रों का आक्रोश चरम सीमा पर था। हर छोटे मुद्दे पर छात्र निकलकर सड़क पर आते थे। शिक्षा के मुद्दे पर तो वह पहले से भी आक्रोशित थे, पर नंबर बढ़ाने के घपले को लेकर यह और भी तेज हो गया। फरवरी 1974 में छात्रों की अनेक बैठकें हुई, जिनमें प्रत्येक समस्याओं पर गंभीर ध्यान दिया गया और विचार विमर्श किया गया। उसी समय गुजरात में भी इन्हीं समानांतर मुद्दों पर छात्र विरोध चल रहा था। गुजरात के छात्रों ने जयप्रकाश जी का एक भाषण पढ़ा था। उसमें जयप्रकाश जी ने संपूर्ण व्यवस्था को अपूर्ण और त्रुटियों से भरा बताया था। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के 40 सालों के बाद भी जब हम भूखमरी से छुटकारा नहीं पा सके, रोजगार के उपाय नहीं खोज सके, तो ऐसी पढ़ाई और इन डिग्रियों का क्या फायदा। इससे तो अगर 1 साल के लिए कॉलेज बंद कर दिए जाएं और व्यवस्था को बदला जाए तो
कोई हानि नहीं होगी। गुजरात के छात्रों ने यह पढ़कर उन्हें अपने आंदोलन में नेतृत्व करने का अनुरोध किया। इधर बिहार में इस घटना का प्रभाव देखकर 24 फरवरी को करीब 200 छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने अनशन किया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। आंदोलन की गति धीमी न पड़ जाए और प्रभावकारिता बढ़े, इसके लिए छात्र संघर्ष समिति बनाई गई। इसमें कई छात्र नेता जो आज बड़े नाम हैं शामिल थे। लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी इत्यादि। छात्र नेता शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तब छात्रों ने यह तय किया कि अब विधानसभा का घेराव किया जाए। समय तय किया गया 18 मार्च 1974। पुलिस भी इधर आंदोलन को रोकने के लिए तत्पर थी। लगभग 50,000 युवा विधानसभा के इर्द गिर्द जमा होने लगे। जब राज्यपाल रामचंद्र भंडारी विधानसभा में प्रवेश करने लगे तो छात्रों ने घेराव करके उन्हें रोका। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र बड़ी संख्या में जख्मी हुए। छात्रों ने लाठीचार्ज का विरोध किया और आर ब्लॉक के पास पेट्रोल पंप को फूंक दिया तथा सर्चलाइट अखबार के दफ्तर को जला डाला। उसी दिन मेरे बड़े भाई के मैट्रिक का एग्जाम था। सेंटर था मिलर हाई स्कूल। पटना के ज्योग्राफी से जो वाकिफ हैं वो समझ जाएंगे कि कितने प्रिकेरियस जगह पर पहुंचना था एग्जाम देने। किसी तरह हम वहां पहुंचे थे। इधर छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी में घुसकर गोलियां बरसाईं, जिससे बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए और 10 छात्र मारे गए। गोलियां चल रही थीं, लाठियां बरस रही थीं, पर छात्र अपना सर्वस्व होम करने और प्राणों को हथेली पर रखकर संघर्षरत थे। मृत साथियों को बाहों में उठाकर अधमरे छात्र अस्पताल नहीं गए। उसी अवस्था में वह जयप्रकाश जी के घर कदमकुआं पहुंचे। छात्रों ने अपनी अधमरी घायल अवस्था उन्हें दिखाई। यह सब देखकर जयप्रकाश जी सन्न रह गए, पर चूंकि सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया था इसलिए चुप रहे। पर एक तरफ इन्हीं तरह के मुद्दों पर गुजरात के छात्र आंदोलन का वह समर्थन भी कर चुके थे, इसलिए उन्होंने थोड़े समय के बाद अपना निर्णय सुनाने के लिए कहा। उन्होंने छात्रों के सामने यह शर्त रखी कि विचार विमर्श छात्र करें, पर निर्णय का पूरा अधिकार उनका होगा। उसी समय नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान जैसे शीर्ष नेताओं और उनके साथ तकरीबन 1,500 छात्रों को जेल में बंद कर लिया गया और लालू प्रसाद के बारे में यह अफवाह फैला दी गई कि गोली लगकर वह मर गए। छात्र प्रत्युत्तर देने को व्याकुल हो रहे थे। फिर एक बार छात्र जेपी के आवास पर गए और उनसे सक्रिय भाग लेने का अनुरोध किया। बीमार जेपी अंततः तैयार हुए और 5 जून को जुलूस का दिन तय किया गया। 50,000 छात्र का जुलूस गांधी मैदान की ओर बढ़ चला, जिसकी रहनुमाई जयप्रकाश करने वाले थे। गांधी मैदान तक पहुंचते पहुंचते इसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, वृद्ध, जवान स्वतः स्फूर्त रूप से आकर जुड़ने लगे। मैं बहुत छोटा था, पर बाबूजी के साथ गांधी मैदान चल पड़ा। छात्रों की जेब में सिर्फ कलम और रुमाल थे। हाथ उन्होंने पीछे की तरफ बांध रखे थे और नारा था, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। सारे भारतवर्ष ने बिहार के छात्रों का यह चारित्रिक नैतिक बल देखा और देखा लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमिट दृढ़ प्रतिबद्धता। इसी प्रतिबद्धता को देखते हुए इसमें फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन, सत्येंद्रनाथ जैसे बुद्धिजीवी, चोटी के साहित्यकार जुड़े। इनकी मौजूदगी ने इस आंदोलन को अभूतपूर्व बल प्रदान किया। जेपी 3 बजे के करीब गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान शायद पहली बार पूरा भरा था। माना जाता है कि वैसा मानव समूह बिहार में फिर कभी नहीं हुआ। उनका भाषण शुरू होने से पहले ही लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश के नारों से दिग्दिगंत को गुजा दिया। यह जनता की तरफ से अपने नेता का सर्वोच्च सम्मान था। जेपी का संपूर्ण क्रांति का भाषण शुरू होने वाला था। दिनकर ने 1950 में एक कविता लिखी थी। वह कविता आंदोलन का भाव बन गई। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है।
फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ को का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार के इतिहास में आज इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे संपूर्ण क्रांति और आगे की घटनाएं। आपको हमारा ये सेक्शन बिहार के इतिहास का कैसा लगता है, कृपया कमेंट में लिखें। आप में से कईयों ने इन घटनाओं को देखा होगा, साझा करें अपने उस समय के एक्सपीरियंसेस का। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। अब बात भारत के विपक्ष की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी डेमोक्रेसी के सफल होने में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष की हालत देखकर सोचने लगता हूं कि कुछ तो ऐसा होगा कि जनता ने यह सब समझते हुए भी एक तरफा मतदान किया। फिर क्या विपक्ष अभी भी सीखने को तैयार है? बात 150 साल से भी पुरानी पार्टी कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस पार्टी 2014 और फिर 2019 के चुनावों में बुरी तरह हारी, पर आज तक कोई समीक्षा नहीं हुई। कारण, अगर समीक्षा होगी तो उंगली नेतृत्व पर उठेगी और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिक के ऊपर सवाल कैसा? बट कैन अ पार्टी फंक्शन लाइक दैट? प्रॉब्लम इज राहुल हैज वर्चुअली नो एक्सपीरियंस and Pinky has literally no experience except for their last names, which are again fake. And congressmen have been made to understand that the party cannot survive without the fake Gandhis. But let us be reminded again and again that Narasimha Rao had successfully governed the country for 5 years and brought in the liberalization, fruits of which we are reaping today. Why can't it happen again? Only a few days back, 23 veteran leaders wrote a letter mentioning the way the party should be functioning in a democratic manner. ख्याल रहे, ये नेता कांग्रेस पार्टी में जमीन से ऊपर उठ के आए हैं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, ये सभी नेता कॉलेज स्तर में संगठन में रहकर ऊपर उठे हैं। NSUI यूथ कांग्रेस का इन्होंने देशव्यापी सफल नेतृत्व किया है। बार बार ये कहा जाता है कि पार्टी ने इन्हें इतना सम्मान दिया, तो सोचना ये भी चाहिए कि क्या इन नेताओं ने पार्टी को कुछ नहीं दिया? माई हम्बल सजेशन टू माई लीडर्स चिल्ड्रन, राहुल एंड पिंकी मस्ट टेक अ sabbatical लीव फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years. Tour India, not like an aristocrat, but to know India, its culture and people. And before embarking on such a trip, they must watch the movie Gandhi to know how Gandhi learnt about India. This should be their homework. Coming back to the affair of the party, don't you think that a weak opposition, or for that matter, a weak Congress party suits the BJP and Modi? Time and again, they have called Rahul an asset. So, could it not be the reason that a party which professes of internal democracy call its goons as special invitees in the Congress Working Committee meeting to humiliate the senior leaders? Is the present leadership of the Congress party having some kind of a deal with the BJP government or Modi? A quid pro quo? We keep the Congress weak and you keep the cases against our family under the rugs. Is that the deal? Otherwise, what is the reason that so much talk of Damadji was going on prior to 2014 elections, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? We do not hear about the National Herald case. Is there really a deal? You never know. कहा था मैंने, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता. Senior leaders must get respect and Congress must be made a public company. आज सुबह अखबार में एक खबर पढ़ी, Influence of dictatorship on country's democracy rising, says Sonia Gandhi. Madam, charity begins at home. पहले पार्टी में तो डेमोक्रेसी ले आओ. आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार के आगे के इतिहास की, भारत के और खबरों की, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी इस पर, और कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में. हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके.
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।